فون کاٹنا اس کی آواز تو سیٹنگ کر کے آؤں جب تک وہ چلتا رہے گا. تم نے وہ ایمپلیفائر میں ڈال دیا نا؟ ہاں اس میں ڈال نہیں ہو جائے گا. ابھی خالی نیل کا ایشو ہے نا. ٹھیک ہے آ گیا نا. تو پہلے آواز ٹھیک کرو. چھوڑو یہ بات نہیں کرتے رہیں گے. اس میں یہ رہے گا ایئر فون وہ سب سیٹنگ رہے گا وہ چینج کرو. مائک یہ سب رہے گا. اسپیکر پہ ڈالو ایئر فون پہ ڈالو ایئر فون. عزیز بچوں ممبر نور پر جنابات اور احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات حمد و ثنا کے بعد آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمخوار یتیموں کے گاڑی کے پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی کہنے والے آقا و مولا جناب احمدی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھنے کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آواز آ رہی ہے کہ بھی نہیں آ رہی؟ بڑی اچھی بات ہے. سامنے آ جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ محفل میں موبائل سے پروفیشنل ریکارڈنگ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس میں کچھ سیٹنگ تھا آپ لاسٹ ٹائم کیے تھے موبائل تو بڑا اچھا بھی لگے گا. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پہلے آ رہی تھی نا. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی نیتوں کو جانتا. ہم اس جشن رسول اللہ کی محفل میں ایرنگ تو پہلے سے ہی لگا تھا. یقیناً موبائل چینج کی میرا تو اذہان یہ کہتا ہے کہ جس نیت سے غوث پاک کی محفل میں غوث پاک کا چاہنے والا ان کا غلام اگر شریک ہو جاتا ہے تو یقیناً غوث اعظم اس کی مدد کرتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ آئے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں تو اس میں تھوڑی دیر دل لگا کر کے بیٹھیں اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک سن کر کے اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں. ماشاءاللہ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد بن صاحب خطیب و امام غوث رشید کی دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور الحمدللہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ الحمدللہ یہ اتنا عظیم الشان پروگرام سال ہر سال سے ہو رہا ہے. کیمرے مطلب یہ نا بلاک ہو چکا ہے یہاں کے غریب مسلمانوں کو اللہ اور مزید توفیق آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے 2 جگہ سے چالو ہے نا اس کی وجہ سے یہ کرنے کا آواز نہیں آ رہی. یہ بند کرو. اور آخرت میں روشنی کا سامان پیدا کرے. ہمارے کرم فرما حضرت مولانا کلام صاحب حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب اللہ تشریف فرما ہے. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر اولیاء اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک
जाने की कोशिश करूँगा। आइए निहायत अदब व एहतराम के साथ एक मरतबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगाकर एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह, एक मरतबा कहने या गौस अल मदद। हजरात, हम और आप औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, यानी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की हमेशा हम दुआ करते हैं, चाहे नमाज हो या गैर नमाज हो। मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये बताने की आपको कोशिश करूँगा, क्या औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना, उनको याद करना, उनके ज़िक्र की महफिल सजाना अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी काम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जिस बात का हुक्म कुरान ने दिया, जिस बात का हुक्म हदीस में मिलता है, बिहम्दिही ताला उसी पर अमल करते हैं। आप गौर फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहा? ऐ ईमान वालो, जब आप ईमान ला चुके, आप ईमान वाले बन गए, तब क्या कहा गया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। यानी इससे यह भी पता लगता है कि अल्लाह से वही डरेगा जिसके दिल में ईमान है। वो नहीं डरेगा जिसके दिल में ईमान नहीं है, वो नहीं डरेगा, और नहीं डरते लोग। फिर कहा गया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। समझ में नहीं आता, जब आप गौर करेंगे तब बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। ईमान भी ला चुके, अल्लाह से भी डरे, जब ईमान ले आए अल्लाह पर, ईमान लाए रसूलुल्लाह पर, ईमान लाए जन्नत दोज़ख पर, ईमान लाए हश्र नश्र पर, जब हम ईमान ला चुके, फिर रब ने कहा कि मुझसे डरो। हम अल्लाह से डरते भी हैं, अल्लाह से डरने भी लगे, अल्लाह का खौफ भी हमारे दिलों में पैदा हो गया। फिर क्यों कहा गया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान भी लाए, अल्लाह से भी डरे, फिर भी रब कह रहा है कि ये दो चीजें काफी नहीं है तुम्हारे लिए, बल्कि तुम अब नेक बंदों के साथ हो जाओ, नेक बंदों के रास्ते पर आ जाओ। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? इसलिए कि इसमें, इस आयत मुबारका में ईमान का खजाना भी मौजूद है, इस आयत करीमा में तक़वा भी मौजूद है। लेकिन आप ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे, तक़वे की हिफाजत कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको गौर करना होगा। ईमान का लुटेरा, सबसे बड़ा लुटेरा शैतान है। आपके तक़वे का सबसे बड़ा लुटेरा शैतान है। वो हर वक्त इस फिराक में रहता है कि किस तरीके से मैं इसको जो है बदआमालियों में दाखिल कर दूं, किस तरीके से इसके तक़वे को बर्बाद कर दूं, किस तरीके से इसके ईमान को मैं बर्बाद कर दूं। हमेशा उसकी यही कोशिश रहती है। और अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान मोमिनीन का खुला हुआ दुश्मन है। जब खुला हुआ दुश्मन है, और उस खुले हुए दुश्मन से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो हमें चाहिए था। उस दुश्मन से अपने ईमान की हिफाजत के लिए,
अपने तकवे की हिफाजत के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए था, कोई ना कोई जरिया तो चाहिए था। अल्लाह ही ईमान अता करने वाला है। जब अल्लाह तौफीक देता है तभी बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। लेकिन रब ने कहा मैंने ईमान दे दिया और तुम्हें अपने खौफ की भी तौफीक दे दी, लेकिन ये दोनों बस नहीं है। अगर इन दोनों की हिफाजत चाहते हो तो वकूनु मा सादिकीन, जो मेरे सच्चे और मुखलिस नेकुकार बंदे हैं हमेशा उनके पैरोकार रहना, उनके नक्शे कदम पर चलना। तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होगी, तुम्हारे तक़वे की भी हिफाजत होगी। आज लोगों ने इन औलिया अल्लाह के बारे में जो आयतें बुतों के ताल्लुक से कुरान में नाजिल हुई, लोगों ने इनके ऊपर चस्पा कर दिया, इनको माज़अल्लाह मिट्टी का ढेर कह दिया, इनको कह दिया ये क्या दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं लोगों, आओ वाकयात बहुत सारे जहन में हैं, लेकिन वाकया भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपका जहन इस तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कि तुम ए ईमान वालो मुझसे डरो, अल्लाह से डरो, और वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कौन हैं? सच्चे होते कैसे हैं? सच्चे वो होते हैं कि लोगों जिनकी नजरों में लोहे महफूज भी होता है। सच्चे वो होते हैं जिनकी नजरें तैतु सरा तक देखती हैं। सच्चे वो होते हैं कि जो जैसे मिसाल के तौर पर बगदाद के दूल्हा बगदाद में आराम फरमा है, लेकिन उनका कोई भी गुलाम अगर दुनिया के किसी भी खित्ते या किसी भी चप्पे से पुकारता है तो अल्लाह ने उस नेक अपने बंदे को, गौसे पाक को यह ताकत अता फरमाई है कि वहीं से वो मुलाहिजा कर लिया करते हैं। और याद रखो, वादे विसाल अल्लाह वालों की ताकत में और इजाफा हो जाता है, उनके मरातिब और मनासिब को और बढ़ा दिया जाता है। गौर करो, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज इस पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चों के साथ जमात है, अगर सच्चों के रास्ते पर चलने वाली कोई जमात है, कोई गिरोह है, तो वो अहले सुन्नत वल जमात है। कहीं का भी हो, दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत जो करते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात करते हैं। गौर फरमाओ, हम नमाज में दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। 5 वक्त की नमाज में नमाजी दुआ कर रहा है, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। जोहर में कह रहा है, असर में कह रहा है, मगरिब व इशा में कह रहा है, फजर में कह रहा है, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो? आपने सीधा रास्ता नहीं जाना? आपने कहा अल्लाह एक है, वो वाहदहू ला शरीक है। आपने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप मलाइका पर ईमान लाए, आप फरिश्तों पर ईमान लाए, आप तमाम चीजों पर ईमान लाए, लेकिन फिर भी आप हर नमाज में कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। आप नहीं कह रहे, बल्कि परवरदिगार आपसे कहलवा रहा है, हुक्म दे रहा है कि जब जब तू नमाज पढ़ेगा सूरह फातिहा तेरे लिए पढ़ना वाजिब है। अगर तू ना चाहकर भी ना पढ़े तो तेरी नमाज ही नहीं होगी। अल्लाह कहलवा रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ कर रहे हो ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान फरमाया है, जिन पर तूने इनाम फरमाया है, एहसान फरमाया है। आला हजरत ने एहसान तर्जमा किया है, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान फरमाया है।
اے لوگوں قرآن ہے یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اور قرآن میں ہم دعا کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ پہچان کرنی ہوگی کہ وہ انعامی یافتہ لوگ ہیں کون سے۔ تو قرآن نے آپ کو جو ہے اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، قرآن وہ قرآن ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سائنس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ دوسرا علم کوئی حاصل کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا، نہیں، بلکہ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں تلاش کریے، یقیناً آپ کو ہر سوال کا جواب قرآن سے مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، ہم نے جو دعا کی تھی نماز میں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے احسان فرمایا۔ پھر اب یہ ذہن میں آیا اور یہ بات آئی ذہن میں کہ آخر وہ گروہ کون سے ہیں جن گروہ پر اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا۔ تو قرآن کا 5واں پارہ اٹھا کر پڑھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا انعام نبیوں کی جماعت پر، میرا انعام نبیوں کی جماعت پر، میرا انعام صدیقین کی جماعت پر، میرا انعام شہداء کی جماعت پر، اور میرا انعام صالحین کی جماعت پر۔ یہ 4 گروہ ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے گروہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ 4 گروہ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، اپنی رحمتوں کی ان پر بارش فرمائی۔ پہلا گروہ نبیوں کا ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے، یعنی اولیاء اللہ کا ہے جو اللہ کے مقرب ہے۔ چوتھا گروہ ان کا ہے۔ آج جس کی تم نے محفل سجائی ہے یقیناً یہ ولی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں یہ قطب ہی نہیں ہے بلکہ قطبوں کے سردار ہیں۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ ان کے باپ کو دیکھو، ان کے دادا کو دیکھو، ان کے نانا کو دیکھو، انہوں نے پوری زندگیاں اللہ کا قرب حاصل کرنے میں گزار دی ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر تمہیں تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، تزکیہ نفس کا طریقہ اگر تمہیں چاہیے تو غوث پاک کا شجرہ اٹھا کر کے پڑھ لو، تمہیں تقویٰ بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، تزکیہ نفس کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ کون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جس گروہ کا آپ ذکر کر رہے ہو اس گروہ کے لیے، اس گروہ کے بارے میں بار بار تم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو، اور رب تم سے کہلوا رہا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ اب جن کو نماز میں یاد کرتے ہو ان کو باہر نہ یاد کرو۔ اگر باہر آپ یاد نہ کرو تو یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ ارے انصاف تو یہ ہے کہ جس کو نماز میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہم نے دعا کی، بار بار رب سے کہا اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر احسان فرمایا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے ان گروہ میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کا مقبول کہتے ہیں، جن کو صالحین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات یہی پر نہیں، ان اولیاء اللہ سے محبت کرو گے تو آپ کو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ ان سے آپ محبت کرو گے تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا
اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. دنیا کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. شیطان کا وار اس مومن کامل پر نہیں چلتا جس مومن کامل کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہو اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ دے دیا. آپ کہو گے مولانا اس پر کوئی دلیل؟ تو میں ایسی دلیل پیش کروں جو ایک زمانے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ اس دلیل کو کوئی رد نہیں کرتا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار؟ ہمارا اور آپ کا اتنا مضبوط رشتہ کہاں ہے ڈائریکٹ خدا و رسول سے کہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں؟ بلکہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کہ ہم محفوظ ہیں، ہم بچے ہیں. اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کے صدقے میں بچے ہیں. جب میں تاریخ کو پڑھتا ہوں نا تو بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ واقعہ واہر مفسر قرآن، واہر علم حدیث کے ماہر، واہر اپنے وقت کے امام، جن کو زمانہ امام فخر الدین رازی کے نام سے جانتا ہے. کیسے امام تھے، کیسا علم تھا، علم سے سینہ لبریز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایسے یاد تھی جیسے حافظ قرآن قرآن کی آیتوں کو پھر پھر پڑھ کر سنا دیتا ہے. آج لوگوں نے یہ تک کہہ دیا اور اولیاء اللہ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی کہ کسی پیر ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے قریب ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، بس نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز ہی سے سب کچھ مل جائے گا. حضرات نماز تو فرض ہے، ہاں پانچوں وقت ہر مومن کامل پر فرض ہے، لیکن یہ نماز اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن اے لوگوں، اس نماز کی اگر حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے، اپنے تقوی کی اگر حفاظت کرنی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کر لینا. غور کرو، شیطان ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے، ہر وقت اس کا کام ہی بہکانا ہے. کبھی ہم سے چغل خوری کرائے گا، کبھی کسی کے دل میں، ہمارے دل میں کینہ پیدا کر دے گا، حسد پیدا کر دے گا. آج حال یہ ہے کہ جہاں چار لوگ جمع ہو جائیں وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور ہوگی، غیبت ضرور ہوگی. اچھائی آج کم دیکھ رہا ہے آدمی، برائی پر زیادہ نظر کر رہا ہے، برائی میں زیادہ ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے. نماز کے باہر نکلے گا، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، چار لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. چند لمحے کرنے کے بعد فلاں بہت جو ہے ترقی کر رہا ہے، یہ نہیں سوچے گا کہ وہ محنت کتنا کر رہا ہے، یہ کوشش کتنا کر رہا ہے. ارے کہیں نہ کہیں سے ہاتھ مار رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کا غلط کاروبار چل رہا ہے. یعنی بس یہیں سے ذہن میں ہمارے کسی کے لیے یہ بات سما جاتی ہے اور یہ کام شیطان کا ہوتا ہے. حضرات میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ غلط کرتے ہیں، نہیں، کچھ لوگ غلط کرنے بھی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کام، یہ بات ذہن میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. کبھی نماز سے ہمیں روکتا ہے، کبھی ہمیں اچھے کام سے روکتا ہے، کبھی ہماری ماں اور بہنوں کو پردے سے روکتا ہے کہ یہ پردہ کیا ہے، یہ تو ہمارے اوپر تان رکھا ہے، یہ تو ہمارے اوپر جو ہے ڈال رکھا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن شیطان دنیا میں تو ہمیں بہکاتا ہی ہے، دنیا میں تو ہمیں پریشان کرتا ہی ہے، وہ تو موت کے وقت بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے نا
نا, उस वक्त शैतान के बड़े शदीद हमले होते हैं। शैतान बड़े ताकत के साथ एक मोमिन कामिल के ऊपर जोर लगाता है कि किसी तरीके से ये अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए, अपने दीन को छोड़ दे, अपने ईमान से जो है हाथ धो बैठे। उस वक्त बड़े शदीद हमले होते हैं। लेकिन उस वक्त अगर ऐ लोगों, जब हमारे हाथ और पैर चलने के काबिल नहीं होते हैं, जब हमारा जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता है, हमारी जुबान लड़खड़ाई होती है, सुनने के लिए हमारे कान जो है, कानों की समात कम हो जाती है, देखने की कुव्वत हमारी आंखों में कम हो जाती है, उस वक्त शैतान हमला करता है और ऐसा शदीद हरबा करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ये चाहता है कि जाने वाला ईमान वाला बनकर ना जाए बल्कि बेईमान बनकर चला जाए। ऐसे वक्त में अगर हिफाजत होती है, अगर ईमान की हिफाजत होती है तो ऐ लोगों अल्लाह वालों के जरिए होती है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के जरिए होती है। किसी मुर्शिदे बरहक का अगर आपने हाथ थामा है तो यकीनन वो मुर्शिद तुम्हारी मदद फरमाता है, तुम्हारी मदद को पहुंचता है। आप ये मत समझना कि तुम्हारे पीर दुनिया से चले गए तो तुमसे बेखबर है, नहीं नहीं, अल्लाह वाले दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनको खबर रहती है, अपने चाहने वालों को वो देखा करते हैं, अपने चाहने वालों की वो मदद किया करते हैं। गौर करो लोगों, जब वाकयात को आप देखोगे तो पता यह लगेगा कि वो अपने वक्त का मुफस्सिर कुरान, जिसके इल्म का लोहा दुनिया ने माना था, दुनिया मानती थी, आज भी उनकी तफसीर मौजूद है, मदारिस इस्लामिया में रखी है और बड़े बड़े उलमा उनकी तफसीर को पढ़ा करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा, देखो ईमान की हिफाजत कैसे हुई, ईमान कैसे बचा, वरना पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत और मुजाहिदे में गुजारी, कभी जिंदगी में नमाज उनकी कज़ा ना हुई, पूरी जिंदगी इल्म दीन के जोहर लौटाते रहे, तलबा को पिलाते रहे, इल्म दीन पूरी दुनिया में फैलाते रहे, किताबें लिखते रहे। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, नज़ा का वक्त आया, तो ऐ लोगों शैतान आ गया। कौन आ गया? शैतान आ गया। मैं इसलिए कहता हूं मेरी तेरी क्या हकीकत है, हमें किस चीज पर गुरूर व घमंड है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना चाहिए और अपनी अकीदत और मोहब्बत उनके कदमों में निछावर करना चाहिए और उनकी मोहब्बत से हमारे सीने रोशन होने चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हमेशा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते रहना। ढोंगियों की बात मैं नहीं करता, ढोंगी बहुत है, लेकिन जो ढोंगी होता है ना, चंद दिन में उसको अपने भी पहचान लेते हैं, बेगाने भी पहचान लेते हैं। ढोंग ज्यादा दिन चलता नहीं है, थोड़े दिन जो है बहुत अच्छा लगता है, यार बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, 5-5 अंगूठी पहनते हैं, लंबे लंबे बाल हैं, हर वक्त जो है डंडा और ये और बड़ी बड़ी बातें। लेकिन आपने देखा होगा कितने दिन ऐसों का ढोंग चला। बंबई में तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, लोगों जो हक परस्त हैं हमेशा उनका बोलबाला रहा है और लोग अकीदत और मोहब्बत उनसे करते चले आए हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जो बनावटी होता है वो बहुत जल्दी लोगों के सामने उसका असल चेहरा आ जाता है। तो ऐसे बनावटियों से, ऐसे ढोंगियों से बच के रहना है। आजकल होता क्या है, अगर जरा सा कुछ उसने दिखा दिया तो अरे यार बाबा तो बहुत पहुंचे हैं, बहुत पहुंचेले बाबा हैं, ये तो यार ऐसी करामत दिखाई, ऐसा किए। अरे करामत तो, अगर किसी को करामत नहीं आती है तो क्या वो वली नहीं है? हैं? वो वली नहीं है? करामत दिखाना और बात है और करामत उसके पास होना और बात है। भाई अल्लाह वाले होते ही वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला कुछ इख्तियारात अता फरमाता है, उनकी शान है ये। और जिसकी तुम महफिल सजाए ना, सुभान अल्लाह,
میں نے معاصب ان کا ایک قول پڑھا اور سنا بھی. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ناقص ولی سمجھتا ہوں جو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. اللہ اللہ، تھڑپ جاؤ مومنو، تو کیسے ہیں تمہارے غوث پاک؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو ناقص ولی سمجھتا ہوں جو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. اس بات کو کس نے لکھا ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سید عبد الرزاق علیہ الرحمن ہے. کہ محفل سجی تھی، چاروں طرف سے لوگ حاضر تھے. کسی سے سوال کیا اللہ والے کی کیا تعریف ہے، جو مقام اور مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کے تعلق سے حضرت کا کیا ارشاد ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو ناقص سمجھتا ہوں جو اپنی نگاہ سے لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. سوال کیا گیا حضرت کامل کون ہوتا ہے؟ ناقص تو وہ ہے جو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. پھر کامل کون؟ تو کامل کون ہوگا؟ ذرا غور تو کرو میرے بھائی. آج یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی صورت کی بات بتا دے تو لوگ کہتے ہیں بہت پہنچیلا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے. غوث پاک فرما رہے ہیں جو زمین سے بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لے وہ ناقص ولی ہے، وہ ناقص قطب ہے، وہ ناقص ابدال ہے، وہ مکمل نہیں. سوال جب کیا گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ پھر کامل کون ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل وہ ہے جو لوح محفوظ کو بھی دیکھے اور لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے اس کو بھی دیکھے اور پھر اللہ کے اذن سے اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو. یعنی کامل وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اللہ کے اذن سے اس کو بدلنے کی طاقت رکھا ہو. اگر شقی لکھا ہوا ہے تو شفیع لکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یعنی کسی کی قسمت میں کچھ لکھا ہے، کسی کی تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو وہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس سے مٹا سکے، اس کی جگہ دوسرا لکھ سکے. یہ ہے تمہارے غوث پاک جن کی محفل پاک تم نے سجائی. اللہ اللہ فرماتے وہ ہے کامل. پتہ یہ لگا کہ غوث پاک اس مقام اور مرتبے پر فائز تھے کہ لوح محفوظ کو دیکھا بھی کرتے تھے اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی طاقت سے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ ان کو دیا تھا کہ وہ یہ طاقت رکھتے تھے کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اگر کسی فریادی نے فریاد کی تو اس کی فریاد کو پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نزا کا وقت، نزا کا سبحان اللہ ماشاءاللہ وقت ہے. اصل میں آج بہت سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. نہ میرا انداز یہ نہیں ہے میں بہت تیز بولتا ہوں، لیکن ذہن میرا تھوڑا سا بنا آج کہ میں کچھ باتیں تھوڑا دھیرے دھیرے کروں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی؟ نہ واقعات تو الحمدللہ میں سنانے پہ آ جاؤں، بہت سارے واقعات میں آپ کو بتا دوں اور واقعی میں بتا رہا ہوں. سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں آپ آئے ہو، ہر سال غوث پاک کی محفل سجاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس محفل کی برکت سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس محفل کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں نصیب ہو رہا ہے. ہر سال تم غوث پاک کا ذکر کر کے آپ کے دل کی دنیا کو آباد کرتے ہو. اور جانتے ہو کون غوث پاک؟ اللہ اللہ. ان کی 11ویں کی بات آ گئی. میں نے پڑھا ایک جگہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہر سال 11ویں شریف کا اہتمام کرتے. غوث پاک کے چاہنے والے ہر سال غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کرتے. اتفاق یہ کہ انہی لوگوں میں غوث پاک کے چاہنے والوں میں ایک غیر مسلم بھی ہے. کون ہے؟ غیر مسلم. ایمان نہیں لایا اللہ پر، ایمان نہیں لایا ابھی رسول اللہ پر، لیکن جب ہر سال غوث پاک کا لنگر دیکھتا
तो साथ में रहता था और गौस पाक के दीवानों से कहता कि आप लोग ये पैसा इकट्ठा करके गौस पाक का लंगर बनाते हो, गौस पाक की न्याज का एहतमाम करते हो, भाई थोड़ा सा मेरा भी मिला लो ना, थोड़ा सा मेरा भी ले लो। कुछ ने मना किया, कुछ ने कहा अरे यार दे रहा है, अपने मांग तो नहीं रहे ना, खुद उसकी अकीदत है, ले लो यार। ले लिया, चलता रहा सिलसिला। अब उसने बांध लिया कि हर साल लंगर में कुछ ना कुछ उसकी शिरकत रहती थी, हर साल रहती थी। फैजान देखो गौसे पाक का, यार अकीदत और मोहब्बत सच्चे दिल से करो तो। आज तो हमारी जबानों पर खाली है, दिल में कहां है? जबानों पर खाली है, अमल कहां है? जबानों पर खाली है कि नमाज पढ़ना है, लेकिन फजर में कोई नहीं उठेगा। नहीं हम गौर करते, नहीं हमने दिल से इन बातों को तस्लीम किया जिन बातों को करना चाहिए था। गैरों ने किया तो गैरों को भरपूर फैजान मिला। मुसलमान का अकीदा जो है कमजोर हो गया, बुजुर्गों से अकीदत कमजोर हो गई, जिसकी वजह से दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, दर दर पर जाकर के जो है ठुकरा दिया जाता है। अरे जिसके हाथ में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन हो, जिसने सच्चे दिल से गौसे पाक को माना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख तो ये बता रही है गौसे पाक को तो अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे पाक ने आने वाहिद में बाहर निकाल दिया है। उनकी शान तो ये है, लेकिन आज कहां से लाए वो दिल जिन दिलों में सच्ची अकीदत थी? कहां से लाए वो किरदार और अमल कि जो लोग अपने किरदार और अमल में सच्चे थे? मेरे भाई, आज सच्चाई को दिल से मानने की जरूरत है। यकीन करो इन बातों पर, पुख्ता अमल पैरा हो जाओ इन बातों पर, तब देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद नहीं लग जाते हैं। तुम तो इधर की सुने उधर की सुने और अकीदत कमजोर कर ली। जो तुम्हारे बुजुर्गों ने, जो तुम्हारे आबा व उस्ताद ने तुम्हें दिया, उससे तुम पीछे हटते चले जा रहे हो, कमजोर होते चले जा रहे हो। सुनो, करता रहा इत्तफाक से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का जायका चखना है। आ गया वक्त, निकल गई जिस्म से रूह, निकल गई जिस्म से रूह। सारे उसके खानदान कबीले वालों ने लकड़ियों का इंतजाम किया। अपने एतबार से जो उनके हर रस्म रिवाज थे, उस एतबार से लकड़ियों के अंदर डाल दिया गया, मानो घी डाल दिया गया, लेकिन अब उसका जिस्म जलने के लिए तैयार नहीं है। जिस्म नहीं जल रहा, नहीं जल रहा जिस्म, मानो घी डाल दिया गया। ना जिस्म जल रहा है, ना कोई हरकत हो रही है। सारे खानदान और कबीले वाले परेशान हैं। उनके गुरुओं ने कहा ऐसा करो, समझ में नहीं आ रहा कि लकड़ियां क्यों नहीं जला रही, लकड़ियों से क्यों नहीं जल रहा। ऐसा करो, इसको निकालो और निकाल कर दरिया में डाल दो, दरिया में बहा दो, मछलियां खा जाएंगी, मछलियों का लुक़मा बन जाएगा। रिवायत में आता है दरिया में डाल दिया गया, फेंक दिया गया। जैसे ही दरिया में डाला, दरिया ने फौरन पानी ने पलट दिया और बाहर आ गया। यानी दरिया भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, लकड़ियां भी जलाने के लिए तैयार नहीं है। अब खानदान और कबीले वाले हैरान और परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि न लकड़ियां जला रही हैं, न दरिया का पानी इसको ले रहा है। आखिर जमीन में क्या किया जाए, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। अभी ये सारी बातें आपस में हो ही रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी एक अल्लाह वाले ने कहा, अरे नादानो, इसको लकड़ी नहीं जला सकती, इसको जो है दरिया का पानी नहीं ले सकता। क्यों? इसलिए कि ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज में हर साल हिस्सा लिया करता था। हर साल
गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की न्याज में हिस्सा लिया करता था। आवाज आई, अरे नादानो सुनो, इसको ना दुनिया की आग जला सकती है, ना इसको पानी ले सकता है, बल्कि ये जब मरा था तो मरने से पहले अल्लाह ने इसको ईमान की दौलत अता फरमा दी है। ईमान की दौलत इसको नसीब सिर्फ इस वजह से हुई है कि ये गौसे आदम से मोहब्बत करता था, उनकी न्याज में हिस्सा लिया करता था। अब मुझे बताओ, अरे गैर मुस्लिम को गौसे पाक की न्याज करने की बरकत से ईमान की दौलत मिल रही है, तो जब अहले ईमान गौसे पाक की न्याज करेगा तो क्यों ना गौसे पाक का करम मिलेगा, गौसे पाक का यहाँ भी साथ मिलेगा और कयामत के दिन गौसे पाक के झंडे का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये होता है करम। मैंने एक बात करी तो अपने महल्ले ही की बात आ गई। सुभान अल्लाह, अपने महल्ले की। अब मेरी बात पर और मौलाना इरफान साहब, हमारे हाजी साहब ने मोहर लगा दी कि मौलाना जो आप बयान कर रहे हो ये तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। आप तो पढ़ के आए हो, आपने तो पढ़ के बयान किया है। यहां कोई हरीस भाई थे, वो न्यास में हिस्सा लेते थे और उलमा इकराम की दूध पिलाते थे, माशाल्लाह, ये उनकी अकीदत थी। फिर उसका बदला क्या मिला? अल्लाह ताला ने उनके बेटे को इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। ये सब गौसे पाक का करम था, गौसे पाक की नजर इनायत थी। अब उनका हाल क्या हुआ होगा ये तो वो जानते हैं, हम नहीं कह सकते उनके बारे में, इसलिए कि जब तक किसी का इस्लाम जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं उन्होंने अच्छा अमल किया था, गौसे पाक से मोहब्बत का इजहार किया था। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको क्या दिया होगा ये तो वो जानते हैं, लेकिन गौसे आजम ने पैगाम दे दिया, मेरी मोहब्बत में ये तूने किया है, मैं तेरी नस्लों को भी इस्लाम की दौलत से दूर नहीं रखूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये शान है गौसे पाक की। लोगों सच्चे दिल से, सच्ची अकीदत से उनकी नियाज किया करो। उनका ये माह मुबारक रबीउल गौस है, इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा खत्म कादरिया किया करो। खत्म कादरिया, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा वजीफा है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि लोगों कितनी भी मुश्किलात हो, कितनी भी परेशानियां हो, आप बामल 11 आलिमों को बुला करके, अल्लाह की इज्जत की कसम, तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा लगता है, उसको पढ़वाओ, न्यास कराओ, तोशा करो गौसे आजम का। देखो कैसे मुसीबतें तुम्हारी काफूर नहीं हो जाती हैं। लेकिन हम करें, अमल करें। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अमल सबसे अहम चीज है। जब अमल ही नहीं होगा तो क्या होगा? आज खत्म कादरिया कोई करने भी जाता है तो मेरे भाई मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा एहतमाम करो, ये करो, वो करो, लेकिन मेरे भाई जिसकी जैसी शान हो उसका लिहाज रखो, उसका लिहाज रखो। ऐसे नहीं कि आपने हलवा बनाया, सूजी का हलवा बनाया, थोड़ा सा जो है पुलाव बनवाया, रख दिया और आपने जो है खत्म कादरिया करा दिया। अरे बुजुर्गान दीन ने एक तरीका बताया है, एक उसूल बताया है। खत्म कादरिया की बरकतों से मैंने लोगों को खुद मालामाल होते देखा है, और ऐसे मालामाल हुए हैं अल्लाह की इज्जत की कसम कि पहले वो छोटा तोशा करते थे, अब हर साल बड़ा तोशा करते हैं और हर साल खत्म कादरिया करते हैं। कितने लोग मेरी नजर में यहाँ है, यहाँ भी है, सूरत में भी है लोगों, लेकिन अदब व एहतराम, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक व साफ होना, कुछ फ्रूट वगैरह मंगा करके उनको साफ सुथरा करके धोना, और उसके बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में देसी मुर्गा ना मिल सके तो साफ सुथरा मुर्गा अच्छे से उसको अपने हाथ से ज़िबा करके उसका खाना बनाना, बना करके फिर अच्छे से
ادب و احترام کے ساتھ نہا دھو کر کے اس کو بنانے والی بھی پاکیزہ ہو، پاک ہو، اور پھر اس کو ادب و احترام کے ساتھ بنا کر کے پھر ختم قادریہ اور غوث پاک کی نیاز کا اہتمام کر کے دیکھو، یقیناً نہ گھر میں برکت ہو جانا تب کہنا، ایسے ہی نہیں کہ بس آئے چند بچوں کو بلا لیا، بیچارے آئے جیسا ان کو آتا تھا ویسا انہوں نے پڑھ دیا۔ اس میں ختم قادریہ میں ایک شرط یہ بھی ہے، سید عبدالرزاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی کے وصال کے بعد جب اولیاء اللہ کی ایک جماعت ذکر و اذکار میں بہت زیادہ مستغرق ہو جاتی اور بہت زیادہ اس میں لگ جاتے تو ہمارے والد نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ توشہ بناؤ، اور توشہ اتنا تیز ہوتا تھا، اتنا گرم ہوتا تھا، اتنا کڑو ہوتا تھا کہ وہ اللہ والے کھایا کرتے تھے، تب ان کو اس سے تسکین حاصل ہوا کرتی تھی۔ میں نے تو ایک کلمی نسخے میں معاصب بات آ گئی تو عرض کر دوں، سورت میں ہمارے ایک اقبال سوریہ بھائی ہیں، ان کے پاس ایک بہت زمانے پہلا کلمی نسخہ جو سید عبدالرزاق علیہ الرحمہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز برابر ہونا چاہیے، یعنی دال چینی ہے، گھی ہے، شکر ہے، سوجی ہے، میوہ جات ہے، لونگ ہے، الائچی، ہر چیز برابر ہونا چاہیے۔ اب ہر چیز برابر کر کے آپ بنا کر کے اسے کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے بھائی، بہت زیادہ تیکھا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ان اللہ والوں کی شان تھی، ان کے لیے وہ چیز خاص تھی تو وہ کھاتے تھے، لیکن ہمیں جو ہے اس میں اختصار کرنے کی اجازت دی گئی کہ جتنا ہم کھا سکیں اس حساب سے وہ بنایا جاتا ہے۔ پاؤ کلو بھی بنتا ہے، آدھا کلو بھی بنتا ہے، اور پورا مکمل 5 کلو کا ہوتا ہے وہ بھی بنتا ہے۔ بہرحال بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، میں عرض کر رہا تھا، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ امام فخر الدین رازی، میں اپنی بات کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا، بات جو میں نے شروع کی ہے اسی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ان کی محفل ہے، انہوں نے ذکر کرا لیا، اور یقیناً میرا بڑا دل خوش ہوا آج اس بات کو سن کر کے کہ جو بات میں نے کتاب میں پڑھی تھی، میرے مخیر حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب قبلہ کی آنکھوں کے سامنے، ہمارے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں تو پڑھ کے آیا، میرے بھائیوں نے تو دیکھا ہے، اب دیکھے ہوئے کو اگر آپ یقین نہیں کرو گے تو کس پہ کرو گے؟ اگر اب بھی آپ کا دل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں مچلے گا تو اے لوگوں پھر کبھی آپ کا دل نہیں مچلے گا، اس لیے کہ مہر پر مہر لگ گئی بات کو۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری ماں اور بہنوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اپنے دل کے نہا کھانے میں رکھو، اور اپنے بچوں کی گھٹی میں غوث پاک کی محبت پلا دو۔ جب جب تمہارا بچہ ظلم و ستم کا اگر شکار ہو، چاروں طرف سے اگر آندھی و طوفان اگر اس کو گھیر لے، اور تمہارے بچے کے دل میں اگر غوث پاک کی محبت ہوگی تو ہزاروں کے بیچ میں بھی اگر یا غوث المدد کہہ کر پکارے گا تو میرا اظہار ہے، میرا غوث وہیں پہنچ کر اس کی مدد فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، نزع کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، آ گیا شیطان۔ کون آ گیا؟ ہر وقت جو ہمیں بہکاتا ہے، ہر وقت جو ہمیں فتنے اور فساد میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آ گیا، آ کر کہا اے امام فخر الدین رازی، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ کہا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا خدا کو پہچانا؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے کہا بے شک میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرے خدا کا کوئی شریک نہیں، میرا خدا ایک ہے۔ جب اتنا کہا تو کہنے لگا اس پر کوئی دلیل پیش کریے، اس پر کوئی دلیل پیش کریے۔ وقت کا امام ہے لوگوں، وقت کا مفسر و محدث ہے لوگوں، اپنے زمانے کا وہ عالم ہے اور اپنے زمانے کا
इमाम है वो, उनसे सवाल किया और उनसे कहा कि अगर खुदा को एक मानते हो, अगर खुदा को आपने पहचान लिया है तो उस खुदा के बारे में कोई दलील पेश करिए। तो कुरान और हदीस में खुदा के ताल्लुक से बेशुमार दलीलें मौजूद हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील पेश फरमाई, लैसा कमिस्लिही शै, मेरे रब की मिसल कोई चीज है ही नहीं। मेरा रब वो है जिसकी मिसल कोई चीज नहीं और कोई चीज नहीं हो सकती। रद्द कर दिया। दूसरी दलील रद्द कर दिया। रिवायत में आता 360 दलीलें पेश फरमाए। कितनी? 360। भाई मैं आप तो 10-20 भी नहीं दे सकते। 10-20 देना मुहाल हमारे लिए, मुश्किल। 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा ने दे दी, क्योंकि वो भी कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था। वो खमीस तो बहुत इल्म वाला था, अल्लाह ने बहुत इल्म उसको दिया था, लेकिन बेअदब था, बाअदब ना बन सका। बेअदबी ने उसका सारा मामला खराब कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी ही तो की थी। आदम अलैहिस्सलाम को सर झुकाने से इनकार ही तो किया था, तभी तो रब ताला ने लानत का तोक उसके गले में डालवा दिया और जन्नत से निकाल दिया हमेशा हमेशा के लिए। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मुअद्दब बन के रहो और नबी और रसूलों और तमाम औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते रहो, उनके मुअद्दब बनकर रहो, उनका अदब करते रहो। अगर बेअदब बनोगे तो याद रखना, एक बेअदब को तुम बार बार सुनते हो, उसने एक बेअदबी की थी, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया और अब जन्नत में उसका दाखिला नहीं है, लानत का तोक उसके गले में पड़ा हुआ है। मैं आप तो जन्नत में गए भी नहीं है। अगर हम अल्लाह के रसूलों की बेअदबी करेंगे, औलिया अल्लाह की बेअदबी करेंगे, तो क्या हम जन्नत में जा सकते? बोलो, नहीं जा सकते। यही कहता हूं डगर डगर नगर नगर फिरने वालों से, अरे जालिमो, तुम नबी के गुस्ताख हो, गुस्ताख। कल भी उन्होंने गुस्ताखियां की थी, आज भी इनके गिरोह के लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी बात को समझ गए होंगे कैसी गुस्ताखी अभी एक जालिम ने की, जो सोशल मीडिया पर एकदम हीरो बना हुआ था। हमारे दिल दुखते हैं, तकलीफ होती है कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ये नबी के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं, फिर भी हमारे सुन्नी इनको सीने से लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये नमाजी हैं, ये नमाज पढ़ते हैं। अरे क्या शैतान से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं? ये शैतान से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। कैसी गुस्ताखी उस जालिम ने की, कुरान में कमी निकाली उसने, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा मुंह काला किया कि अपने तो अब बेगाने तो बेगाने, अपनों ने उसको जूता मारा, अपनों ने उसके ऊपर फतवे लगाए, मुंह उसका बंद हुआ। ऐ लोगों, ये जमाना ऐसा चल रहा है कि हमें दोनों तरफ देखना होता है। एक तो आस्तीन में छुपा हुआ है और एक एकदम सामने नजर आ रहा है। अब सामने वाले से भी निपटना है और जो आस्तीन में छुपा हुआ है उससे भी निपटना है। हमें तो दोनों से बचाना है अपने लोगों को, हमें तो दोनों से बाखबर करना अपने भाइयों को। एक तो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हमें बहकाने के चक्कर में, हमारे भाइयों को बहकाने के चक्कर में लगा हुआ है, और एक तो खुल्लम खुल्ला, ऐ लोगों माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह, ये जबान कट जाएगी, इन जालिमों के हाथ पैर गलेंगे सड़ेंगे, लेकिन ये अपनी जुबानों से ऐसी बातें कह देते हैं कि जो मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचती है। अभी क्या हुआ 3-4 दिन पहले आपने सुना, वो जालिम जो एक घोंसले में बैठ करके भौंकता है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। अल्लाह ताला देख रहा है कि मुसलमानों के दिल कितने बेचैन और बेकरार होते हैं, और वो जानता है मेरा परवरदिगार उसने जो है एक वक्त की मोहलत दे रखी है, जब उसकी पकड़ आएगी तो कोई नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएंगे। लेकिन मेरा और आपका फरीजा ये है, हम अपने ईमान को बेदार रखें। जब जब ऐसी बात हम सुने, जब जब हमारे सामने ऐसी बात आए,
मुरीद हो जाता है, जो पाबंदे शरा पीर और मुर्शिद से मुरीद हो जाता है, यकीनन दुनिया में उसके ईमान की हिफाजत हो जाती है। अल्लाह उन मुकद्दस वलियों के जरिए उनके ईमान की हिफाजत करा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, आप जरा गौर करो, कुरान ने जो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होगे तो क्या मिलेगा? ईमान की हिफाजत होगी, तक़वे की हिफाजत होगी। अल्लाह अल्लाह, ये तो उम्मत मुहम्मदिया है, ये उम्मत मुहम्मदिया है। इस उम्मत का क्या कहना और इस उम्मत के वलियों का क्या कहना, बड़ी शान वाले हैं। एक रिवायत हजरत, 2-4 मिनट, एक रिवायत मेरे सामने से गुजरी जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स था बनी इसराइल में, कहा था बनी इसराइल में, जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए? बोलो, 99 कत्ल किए। देखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह वालों के दर पर जाओगे तो क्या मिलेगा? आज लोग कह देते हैं ना क्या मिलेगा। आज तो हम अगर गरीब नवाज के दर पर जाते हैं तो क्या मांगने जाते हैं? दौलत, बेटा, बेटी, घर, मकान। अरे असल तो ये है कि ख्वाजा के दर से मांगने ही अगर गए थे तो मांगते, ए गरीब नवाज, बेनमाजी आया हूँ, नमाजी बना दीजिए। मांगना ही था तो ये मांगते, गरीब नवाज कुरान पढ़ना नहीं आता है, दुआ कर दीजिए कि कुरान पढ़ना आ जाए। इल्म नहीं है सरकार, आपको तो अल्लाह ने बेशुमार उलूम व फनून का माहिर बनाया था, बहुत सारी ज़बानों का आपको माहिर बनाया था। मैंने तो एक बहुत मोतबर शख्सियत से ये तक सुना है, पढ़ा नहीं मैंने, उनसे सुना है, उनकी सोबत में मैं रहा 1 साल। उन्होंने एक मर्तबा बयान किया कि गरीब नवाज वो थे कि जिनको 100 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। कितने? 100 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और होती भी क्यों ना, उन्होंने पढ़ा था अपने असातिज़ा से, 20 साल तक पढ़ा था गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने, और खुद वली, आपके वालिद वली कामिल और बहुत बड़े उस वक्त के आलिम बामल थे, और आपकी वालदा भी अल्लाह की वलिया थी, मुक़द्दस औरत थी वो भी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने उलूम पर उनको महारत हासिल नहीं हो। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, वहाँ गए ही थे तो ये दुआ करके आते हैं, अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में मेरी तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दे, और मौला मुझे नेक और अच्छा इंसान बना दे, ताकि मैं खिदमत खल करूं और खिदमत दीन करूं। वहां तो बट रहा है, वहां बढ़ रहा है, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जाकर के ये मांग लिया करो, या अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे, गरीब नवाज के सदक़े में मौला मुझे नमाजी और हाजी बना दे। ये दुआ किया करो मेरे बच्चे को मौला गरीब नवाज के सदक़े में नेक बना दे, अच्छा बना दे, ये दुआ किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मिलेगा अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो? बनी इसराइल का एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए। कितने कत्ल किए? 99। और करने के बाद एक राहिब के पास गया, राहिब यानी एक आम इंसान के पास गया, और जाने के बाद उनसे कहा कि साहब आपके चेहरे पर बज़ाहिर दाढ़ी है, आप मुझे नेक लगते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं और अब मेरे दिल में तौबा करने का ख्याल पैदा हो गया, यानी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में पैदा हो गया, अब मैं अपने गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। तो उस राहिब ने जब इतना बड़ा गुनाह सुना तो कहा, इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी तो माफ़ी होगी नहीं, इसकी माफ़ी है ही नहीं। गुस्सा आया, कर चुका था, जो 99 कत्ल कर चुका हो उसके लिए क्या है। उसने कहा कि 99 तो हो गए, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, 100 की गिनती पूरी करता हूं।
सो इंसानों का कातिल, और ये रिवायत मुस्लिम में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ जो बुखारी शरीफ के बाद किताब है। अब कुछ दिनों के बाद फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूं। ये बनी इसराइल की बात है, तुम्हारी और मेरी बात नहीं है, इस उम्मत की बात नहीं है। फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, फिर किसी आलिम दीन के पास गया, यानी बनी इसराइल के किसी आलिम दीन के पास गया। ये होता है पढ़े लिखे, जो बेपढ़ा हो और पढ़ा लिखा दोनों में कितना बड़ा फर्क है। आज तो ये फर्क भी मिटाया जा रहा है, ये भी नहीं सोचते। आज तो आदमी मसला उससे पूछता है कि जिसको आता ना हो, हाँ, या वो मसला पूछेगा जो आता हो। जो मसला आता हो वही दोबारा पूछेगा, ये नहीं कि जिस चीज की जरूरत है, क्या क्या करना चाहिए, कुछ सीख ले, नहीं सीखेगा। गया था पहले वो एक जाहिल के पास, मार डाला उसको भी, 100 की गिनती पूरी हो गई। अब गया एक आलिम के पास, अपना पूरा वाकया बयान किया, बताया ऐसा ऐसा हुआ और मैंने 99 कत्ल किए, फिर उसके बाद 100 की गिनती मैंने पूरी की। हजरत मैं ये चाहता हूं कि मैं तौबा कर लूं। अब आलिम था, पढ़ा लिखा था, तौरात का इल्म उसके पास रहा होगा, वो जान रहा होगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम उसके पास रही होगी। उस आलिम दीन ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस आलिम ने कहा कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ और तुम तौबा करना चाहते हो तो सुनो, अंतलिकु इला अर्दिन कदा फइन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह। जब फला बस्ती में चला जा, वहां कुछ अल्लाह वाले रहते हैं, उनकी बारगाह में जाकर तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। फला बस्ती में चला जा, वहां कुछ अल्लाह वाले रहते हैं। पता ये चला कि पिछली उम्मतों का भी ये अकीदा था कि अल्लाह वाले हर उम्मत में रहे हैं और हर उम्मत ने अल्लाह वालों का अदब व एहतराम किया है। आज कोई नई चीज नहीं है कि हम और आप जो अल्लाह वालों का अदब व एहतराम कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। हर नबी की उम्मत में वली हुए हैं और उन वलियों का अदब व एहतराम किया गया है। उन वलियों के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की खताओं को माफ फरमाया है। उसके बाद अब वो शख्स चला, मुख्तसर करके बता दूं, वो शख्स चला, अभी रिवायत में आता है चंद ही कदम चला था, फौत हो गया। क्या हो गया? फौत, यानी इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, कैसी आरजुएं रही होंगी, कैसी तमन्नाएं रही होंगी, लेकिन मौत वो है, कितनी भी तुम्हारी आरजुएं हो, कितनी भी तमन्नाएं हो, जब वक्त आ जाता है तो एक पल ना इधर हो सकता है ना उधर हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं रुक सकता। जब हुक्म हो गया, वक्त आ गया, चाहे कितना भी अच्छा करने चलो या कहीं भी तुम रहे हो, जब वक्त आ जाएगा तो वहीं तुम्हारी मौत को पहुंच जाना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। आप ये सोचते हो कि हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। कहीं भी जाकर के बंद हो जाओ फिर भी आप नहीं बच पाओगे। कैसी तमन्ना, कितनी अच्छी तमन्ना लेकर गया था कि मैं तौबा करूंगा, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। उलमा फरमाते हैं गया, चंद कदम चला था, फौत हो गया, इंतकाल हो गया। अब भाई रूह को तो फरिश्ते लेने आते हैं ना, रहमत के फरिश्ते भी आते हैं, अजाब के भी फरिश्ते आते हैं। अच्छे लोगों की रूह को, नेक लोगों की रूह को अच्छे फरिश्ते, नेकूकार फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते लेकर जाते हैं, और जो बदकार होते हैं उनकी रूहों को जहन्नम के फरिश्ते लेकर जाते हैं। अब दोनों तरफ से फरिश्ते आ गए। जन्नती फरिश्ते कह रहे हैं कि हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे, जहन्नम वाले फरिश्ते कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे। बोले क्यों? कहा 100 आदमियों का कातिल था, हम इसलिए लेकर जाएंगे कि 100 आदमियों का कातिल था। जन्नत वाले फरिश्तों ने कहा कि हम इसलिए इसको लेकर जाएंगे कि ये अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा था, तौबा करने जा रहा था, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा करने जा रहा था, इसके लिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। मुख्तसर ये
کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں آپس میں انشاءاللہ یہیں سے کل بھی ہے نا، کل انشاءاللہ میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کر دوں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ نورم مبین.